And in this chapter, we are going to study the some of the technologies related to the access to the end users. तो एंड यूज़र को कैसे एक्सेस कराया जाता है. सो देयर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड in the communication system to access the users. So we are going to be study this. इस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं. Later on, we would like to have in one of the uh, packet radio techniques and how to access by using the packet radios. Packet radios से हम कैसे access कराते हैं by using the Aloha or pure Aloha and by using the slotted Aloha as well. These techniques has been used to access to make the access to the users into the communication systems. So first of all, we have to see that what does it mean to be a multiple access technique. Multiple access technique से मुराद क्या है and how we can you to be achieve this. Now you see that we have got a single cell over here, and that single cell basically is the larger geographic distribution of the communication. So it means to be the axis is basically is at the first level, the multiplexing is going to be divided on a geographic region, space region के अंदर divide की गई है. So we will see that what are the basic techniques for that. So we have an over there are the users, user 1, user 2, user 3 are connected to the base station with an access technique. Access technique is so over here you see that the cellular system again we describe into the previous lectures that the geographic division is the first division. पहली division जो है वो geographic division है. So space has been divided into the hexagonal cells. Hexagonal cells के अंदर divide कर दी गई हैं. So all the base station are going to be connected with the MSCs. MSCs के साथ connected, and in turn it is going to be connected with the PSTN के साथ connected हैं with the landline numbers over here. Now you see that जितनी भी कम्युनिकेशन है एमएससी या पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के साथ और या फिर बेस स्टेशन के, सो ऑल डजंट हैव एनी बॉटलनेक इसके अंदर मौजूद नहीं है. इट मीन्स टू बी वी हैव a very sophisticated and a very efficient kind of the cabling is over there. For example, fiber optics cable जो है वो लगी हुई है MSCs और बेस स्टेशन के दरमियान में और PSTN के साथ. So there is no bottleneck exist over there, क्योंकि आपकी जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो आपको 10 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर रही है. सो देयर इज no issue of the speed between the MSC and the BSC and the PSTN. The only bottleneck is over here is said to be the base station is connected with the user. तो यहाँ पे आपका speed constraint आ जाता है. This is said to be the air interface. So to achieve a very good speed, so you must have to be using a larger bandwidth over there. ठीक है जी. तो वो फिर constraints हम देखेंगे कि how it is going to be connected over there. We already described that what you mean by a frequency reuse pattern. It means to be this is a cluster, and the complete bandwidth is going to be divided among that cluster. For instance, that yellow is given to the G cell, the pink is given to the B cell. So it means to be the complete frequency spectrum is given to the one cluster. एक cluster को assign कर दिया जाता है. But you see that A will have a different frequency as compared to the B cell. इसी तरह C के साथ, D के साथ, E के साथ. So every particular cell have gotten a different frequency used in over here. Later on, that particular cluster is repeated again and again over here, over here, over here, and into the other cells as well. So it's going to be continued into the overall geographic region there continues. So you see that this is the first level of the division. ये पहली level है कि आपका geographic division कर दी गई है to increase the capacity of the system की capacity को increase करने के लिए, और by using this, and we are also going to be maintain the quality of the signal as well. Signal की quality भी maintain हो रही है यहाँ पे. So we have got the clusters are going to be repeated again and again by using the
same bandwidth has been assigned to the each cluster. हर एक cluster को same bandwidth assign कर दी गई है. We already gone through the handoff procedures as well. Handoff से क्या मुराद है? Whenever you are going to be crossing from one cell to the other cell, you will be connected with the next base station. दूसरे base station से connect हो जाते हैं and leaving the first one जिसके अंदर आप होते हैं. So as speedily you are going to be passing from one cell to the other cells, you will be allotted with a new channels. आपको नए channels है if it is in a hard handovers हैं. अगर if you have got in a soft handover, only the control is going to be transferred to the new base station. नई base station को transfer कर दी जाती है. Then you see that this is an important phenomenon over there. So तो पहली division जो हमने देखी है तो वो geographic division है. Geographic क्या? The cells, the frequencies has been divided among the cells. तो पहले आपका जो land है is going to be divided into the cells की. So this is a one kind of the division. So the first level of the division. And you see that what would happen that whenever you are going to be communicate with the base station, जब आप base station के साथ communicate कर रहे होते हैं, what will happen that there is a two kind of the links there. दो किस्म के links हैं. One is said to be uplink and the other is said to be a downlink. Uplink we mean to be whenever you are going to be communicate and you send a signal from your side, from the user to the base station antenna, so it is said to be the uplink. If you are going to be receiving something from the base station, so it is said to be a downlink. So uplink and downlink are generally whenever you are going to do an duplex communication. जब आप duplex communication करने जा रहे हैं, what will happen that both will be onto the different resources के ऊपर होंगे. It will not be onto the single resource. किसी एक resource के ऊपर नहीं होंगे. I will tell you what you mean by the resource, right? तो कोई बता सकता है what is that resource? Anybody? Bandwidth, sir. Bandwidth. Frequency is the one resource. That's fine. The other resources? Wire, sir. The other resource is said to be time. And the third resource you may have and is said to be space. ये आपके पास resources हैं. We will tell you about this more elaborate on this into the next slides. तो uplink और downlink जो है वो different resources पे हो रही थी. अगर दोनों एक ही resource पे होंगी तो it may happen that कि वो दोनों एक दूसरे से interfere करें. So we used to have a downlink connection with a different resource. It may have a different frequency. The uplink signal is operated at a different frequency. So both have onto the different resources के ऊपर होंगी. Now you have seen that there is a bandwidth and the bandwidth is assigned to the different users. Different users को assign कर दी गई हैं. So it doesn't mean so in a one base station, the two users cannot be operate on a single frequency. Single frequency के ऊपर काम नहीं कर सकते. Otherwise, that will basically makes an interference with one another. So every particular user will be assigned with a different frequencies. Different frequencies assigned कर दी जाती हैं. So it means to be, let's suppose is a user 1 is going to be allocating with the M1 bandwidth. The user 2 will then be allocated with the M2 and MK. Is if you have got the K number of the users, so number of different band bits will be assigned to the user. हर एक user को assign किए जाते हैं. ठीक है जी. Now this is the important slide which is going to be described the multiple access techniques over there. ठीक है. Many mobile users to share the available radio spectrum simultaneously. तो एक ही आपके पास radio spectrum है और वो simultaneously use कर रहे होते हैं different users. And these are said to be, that can be achieved by using the technologies and we are going to be discussing that technologies and these said to be a multiple access techniques. दो किस्म की चीज़ें हैं. एक said to be FDM. FDM का नाम आपने कभी सुना जी? FDM? Yes, sir. जी, किसे कहते हैं जी FDM?
सर इसमें पूरा बैंडविड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन होती है इसमें, मतलब कि नहीं, डिफरेंट एफडीएम से फ्रीक्वेंसी बनता लोकेट क्या होते है? हैं। एफडीएम से बनता क्या है जी? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लेक्सिंग सर। Multiplexing. So there is a difference between over there. यहाँ मैंने FDMA लिखा हुआ है. And the one thing is said to be FDMA is a frequency division multiplexing. It means to be uh, the frequencies has been divided onto the spectrum, and that will be multiplex together and will be work together. वो सारे काम है. लेकिन आप एक्सेस जब करते हैं, मतलब आप आखिरी एंड यूजर को, यानी कि जो यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या दे रहे हैं आप? उसको अगर कोई बैंडविड्थ दे रहे हैं, उसको एक्सेस करा रहे हैं किसी खास बैंड के ऊपर. सो वी स्टेटेड दैट दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. सो मल्टीपल यूजर आर गोइंग टू बी असाइन्ड विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को तो मल्टीप्लेक्स किया, सो आपने डिवाइड किया, सो दिस इज सेड टू बी डिवीजन. And over here you are going to be access with some particular band to the end user. तो end user को जब आप frequency ही दे रहे होंगे, तो you will said to be this is a frequency division multiple access. So multiple user are going to be access the bandwidth. दूसरा रिसोर्स है वो टाइम का रिसोर्स है. सर इसकी समझ नहीं आई सर, मतलब अच्छा, एंड यूजर सर सेम फ्रीक्वेंसी पे एक्सेस होगी या सर इसकी देखिए सर एंड समझ नहीं यूजर आई। वो होता है कि एंड यूजर तो एंड जो आपका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पास मोबाइल है. इज इट राइट? यस सो सर। व्हाट विल हैपन दैट कि आप एंड यूजर को फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, एक तो मल्टीप्लेक्सिंग है कि आपने फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर दी, लेकिन एंड यूजर को आप फ्रीक्वेंसी की बेस पे ही एक्सेस दे रहे हैं. तो वी सेट टू बी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ये आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा. वी विल डिस्कस कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा. मसलन ठीक है सर। अगर मैं यूजर को एंड यूजर को एकोमोडेट कर रहा हूँ टाइम के बेस पे, मसलन मैंने उसको 1 माइक्रो सेकंड के लिए स्लॉट दी और फिर कुछ देर बाद फिर उसको मैं स्लॉट देता हूँ, तो एंड यूजर को मैं एकोमोडेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ उसको मैं एकोमोडेट कर रहा हूँ. सो हम कहेंगे कि जो लास्ट एक्सेस है, लास्ट जो यूजर को है, वो मैं टाइम एलोकेट कर रहा हूँ रादर देन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली एलोकेट होती है, लेकिन लास्ट यूजर को मैं टाइम पे डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है जी, ये हम जाके देखेंगे कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर कैसे होता है. दी अदर इज यस सेड सर, टू बी. जी जी. लेकिन सर ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर, इसमें फिर क्या फर्क है सर? मल्टीप्लेक्सिंग को एफडीएम और एफडीएम में सर। एफडीएम का जो लास्ट यूजर से कंसर्न नहीं है. इट डजंट हैव टू बी कंसर्न विद द लास्ट यूजर. इज इट राइट? सर फिर मसलन आप जीएसएम अच्छा। के अंदर, जीएसएम के अंदर प्लीज जी, यस सर। जीएसएम के अंदर ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, अब वहां पे भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, लेकिन लास्ट यूजर को एक्सेस कराया जाता है टीडीएमए के साथ, यानी एफडीएमए के साथ नहीं कराया जाता. टीडीएमए उसको टाइम स्लॉट दिया जाता है. यू गॉट माय पॉइंट? मसलन यस सर। हाँ, तो मल्टीप्लेक्सिंग जो आपका जो टीडीएमए के अंदर है, ब्रॉडली वो कहते हैं कि लेट्स सपोज के एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो डिवाइड कर दिया गया है और उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स कर दिया गया है. यस सर। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी 8 यूजर्स को दी जाती है जीएसएम के अंदर, 8 यूजर को. अब एक ही फ्रीक्वेंसी 8 यूजर को आप देंगे एक ही सेल के अंदर, तो वो तो बेसिकली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज यस यू आर सर। गोइंग टू गिव एन सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड टू द 8 यूजर. लेकिन इस वक्त जो यूजर है, 8 यूजर जो एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, उनको टाइम स्लॉट दे दिया जाता है. यानी 1 माइक्रो सेकंड के लिए आप ट्रांसमिट करेंगे, 1 माइक्रो सेकंड के लिए दूसरा यूजर, 1 माइक्रो सेकंड के लिए तीसरा. अब जो है ब्रॉडली वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हुई, लेकिन यूजर को टाइम स्लॉट दिया कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे फॉर 1 माइक्रो सेकंड, दूसरा यूजर उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर नेक्स्ट माइक्रो सेकंड के अंदर, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. तो लास्ट एक्सेस किस पे हुआ? टाइम डिवीजन पे हुआ. इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टू द एंड यूजर. लेकिन एंड यूजर को एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं की गई. इज अ टीडीएमए टेक्नोलॉजी के लिए. सो इसके ऊपर हम फिर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है सर। थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को मैंने दे दी है. ठीक है जी, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल दैट बिफोर गोइंग. तो अपलिंक और डाउनलिंक के बारे में हमें, सो इट्स सेड टू बी, अगर इफ द अपलिंक एंड डाउनलिंक resource is going to be executed simultaneously, so is stated to be a duplex system. यानी आप सुन भी रहे हैं और आप बात भी कर रहे हैं at the same time.
तो द सिस्टम इज सेड टू बी अ डुप्लेक्स सिस्टम। लेकिन अगर आप सुन भी उसी फ्रीक्वेंसी पे रहे हो और ट्रांसमिट भी उसी फ्रीक्वेंसी, तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। सो दैट मस्ट बी ऑन टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो डुप्लेक्स half duplex भी होता है, full duplex है. So in a communication system that is being used into the mobile systems are said to be a duplex system. हम उसको duplex systems कहते हैं। अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए डिफरेंट रिसोर्स इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डिफरेंट रेंज ऑफ रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। नाउ यू सी दैट के व्हाट यू मीन बाय डुप्लेक्सिंग अगेन। Need to talk and listen simultaneously. Whenever you are going to be talking, at the same time you are going to be listening as well. So this kind of the communication is said to be duplexing. Duplexing यानी अपलिंक एंड डाउनलोड फॉर द सेम यूजर। फॉर द सेम यूजर, एक ही यूजर है, वो अपलिंक जब बोलता है तो बेस स्टेशन को दे रहा होता है, उस वक्त वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा होता है या किसी और टाइम पे ऑपरेट कर रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम it is now going to be receiving by using a different frequencies. So this is said to be a duplexing phenomena. There are two type of the duplexing. One is said to be F frequency division duplexing and time division duplexing. जो टाइम डिवीजन है वो आपका 3G और 4G के अंदर इस्तेमाल होता है, एंड वी हैव गॉट दी FDD टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इनटू दी 1G and 2G के अंदर इस्तेमाल होता है। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। फॉर एग्जांपल FDMA/FDD एम्प्स। एम्प्स इज द फर्स्ट जनरेशन मोबाइल्स, पहले जनरेशन के मोबाइल्स हैं, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स। FDMA तो आपको जो एक्सेस कराई जाती है ऑन टू द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस के ऊपर। आप इसको समझ रहे हैं? Every user in a cell, every user in a cell will be allocated with a different frequency, and that band will not be used by the any other user in the same cell. उसी cell के अंदर वो उसको नहीं, so the frequency has been divided among the users. अच्छा, अब एक फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती एक यूजर को, उसकी अपलिंक के लिए और डाउन लिंक के लिए, अपलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसीज और डाउन लिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी। So basically the two channels has been provided to the single user. एक यूजर को दो चैनल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, one is for the uplink and the other for the downlink के लिए। Is it right? Everybody is understanding this? जरा सब मुझे फीडबैक भी साथ साथ देते रहें जी प्लीज। यस सर। ठीक है। क्या होता है कि आप whenever you are going to connect on a call, जब आप कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं, you will be allocated with the two band of frequencies. One band is used for the uplink and one band is used for the downlink. Downlink के लिए तो वो दोनों की frequencies different होंगी। They both have got a different frequency. दोनों की frequencies different हो गई। So this is said to be FDMA। आखिरी यूजर को एक्सेस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की बेस पे दिया गया, और साथ साथ FDD टेक्नोलॉजी यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग की बेस पे, यानी कि अपलिंक के लिए अलग और डाउनलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी। सो इट्स सेड टू बी FDMA FDD टेक्नोलॉजी। Whenever we talk about the GSM is a European technology। ये आपकी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड IS-54 is its equivalent competitor is the American technology. This is the interim standard and will be lie into the second G के अंदर lie करता है, अमेरिका के अंदर ये यूज होता था सिस्टम। ये दोनों टेक्नोलॉजी यानी GSM and IS-54 that both are using the TDMA technology। लास्ट एक्सेस जो यूजर को दिया जाता था वो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की बेस पर, सो इट्स अ टाइम डिवाइड। आपके 8 यूजर्स जो हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले को देखें, एवरी यूजर इज यूजिंग द यूनिक फ्रीक्वेंसीज। तो 8 यूजर नहीं इस्तेमाल किया, एवरी यूजर के पास अपनी एक बैंड है एंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दूसरों से डिफरेंट है। लेकिन TDMA टेक्नोलॉजी के अंदर द मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो टाइम स्लॉट है that is now going to be different, वो टाइम स्लॉट डिफरेंट है, एंड दिस इज सेड टू बी FDD टेक्नोलॉजी। यानी टाइम तो आपका डिफरेंट है, लेकिन अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह
जब TDMA का फ्रेम होता है, फ्रेम, डू यू हैव एन सम आइडिया अबाउट द TDMA? आपने डेटा कम्युनिकेशंस के अंदर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हो या TDMA का कोई फ्रेम पढ़ा हो? जी सर एक हमने तो ये पढ़ा था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कि मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसी खास टाइम के लिए पहले एक यूजर को असाइन होती है, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। एग्जैक्टली फ्रेम तो ये सर एक हम फ्रेम यूज बनता कर है, रहे एक फ्रेम बनता है ना। तो वो जी सर। फ्रेम जो है, लेट्स सपोज के 8 यूजर्स को असाइन किया जाता है, सही है। हर एक इस फ्रेम के अंदर हर एक स्लॉट जो है, वन स्लॉट विल बी एलोकेटेड टू द वन यूजर। तो ये सारे फ्रेम की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, इज इट राइट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंप्लीट फ्रेम इज वन, वो आपके पास सबकी एक ही होती है। इसका मतलब है कि यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड अप टू यूजर 8 ऑल हैज बीन असाइन्ड विद द सेम फ्रीक्वेंसी। सबकी फ्रीक्वेंसीज एक जैसी हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जैसी है। लेकिन लास्ट सेक्शन, अब इस तरह के आखिरी यूजर को, यानी जो 8 यूजर्स हैं जो इस फ्रेम के अंदर लाई कर रहे हैं, उनको टाइम में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक में एक बोलेगा, एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में दूसरा बोलेगा, एंड अप टू सो ऑन। सो दैट विल बी रोटेटेड अगेन एंड अगेन। ये दोबारा दोबारा से ये फ्रेम जनरेट होता है। लेकिन ये तो टाइम पे डिवाइड हुआ, लेकिन वही यूजर जब ट्रांसमिट करता है यानी अपलिंक के लिए, तो वो FDD टेक्नोलॉजी यानी एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करता है, और जब वो डाउन लिंक पे आता है तो इट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटिंग विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देयर। So that complete technology is said to be TDMA/FDD technology that has been used into the second generations के लिए इस्तेमाल की गई है। Any question सर regarding this? जी 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 सर जी। कभी कभी हमें अपनी इको जो सुनाई देती है वो अपनी किस इको, वजह से हाँ वो देखे ना, वो इस तरह होता है कि जब व्हेन एवर यू हैव गॉट द लीकेजेस ऑफ योर फ्रिक्वेंसी, आप जो है ना, होता ये है कि आपने ट्रांसमिट किया और दूसरी अपलिंक के लिए और डाउन लिंक के लिए, तो डाउन लिंक जो है वो बहुत आपकी क्लोज है, फॉर इंस्टेंस, तो बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसीज है। तो व्हाट विल हैपन दैट कि वो लीक होके, और चूंकि आपकी वो एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर के अंदर, सो दैट सम ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू बी लीक एंड कम्स इनटू द डाउनलिंक के अंदर स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। तो आपके रिसीवर, जो मोबाइल के रिसीवर, उसको वो occupy कर लेता है। So what will happen that whatever you are going to be talking, so it's now going to be receiving as an echo at your speaker, आपकी speaker पे echo के तौर पे आ रहा है। So because of the adjacent channel interferences, what will happen that some of the frequency may leak and comes into the and lie into your downlink के अंदर वो lie कर जाते हैं, interfere कर जाते हैं। So you are going to be listening the echo of this. So उसकी echo आप receive कर रहे होते हैं। ठीक है सर मतलब जब जी टाइम डिवीजन में सर वो पूरी फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है तो दोनों अप लिंक और डाउन लिंक दोनों एलोकेट हो जाते हैं एक यूजर को। हाँ, दोनों, मतलब आप देखें ना, एक फ्रेम है, एक फ्रेम GSM के अंदर जो एक फ्रेम है, दैट इज दैट हैव गॉट टोटल ऑफ 8 स्लॉट्स। कितने स्लॉट्स हैं? 8। एवरी पर्टिकुलर स्लॉट इज एलोकेटेड टू द वन यूजर। तो कितने यूजर एकोमोडेट होंगे एक फ्रेम के अंदर? 8 यूजर एकोमोडेट 8 होंगे। सर। अब ये 8 यूजर एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे होंगे, is it right? And that 8 user will use that frequency for the uplink. Uplink के लिए उसने यूज कर ली। इसी तरह का एक वो फ्रेम होगा 8 यूजर्स के लिए, is it right? और वो भी यही सेम यूजर इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो व्हाट विल हैपन दैट कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी टू द अदर, एंड दैट विल बी यूज फॉर द डाउनलिंक। वो डाउनलिंक के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। सो मीन्स टू बी जो आपका अपलिंक है और डाउनलिंक है वो FDD है, इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आप रिसीव कर रहे हैं, इज इट राइट? लेकिन आप एक दूसरे यूजर्स से जो एक्सेस आप ले रहे हैं वो आपका TDMA टेक्नोलॉजी, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के ऊपर बेस कर रही है। चलें, TDMA और FDMA को हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसको हम फिगर से और डिफरेंट चीज़ों से मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ओके जी, ये मुझे थोड़ा बता दें कि हैव वी ऑलरेडी डिस्कस द शैनन थ्योरी और ना शैनन कैपेसिटी? नो सर शैनन, हमने नहीं। अच्छा, in 1948 the Shannon expressed that
what is the maximum capacity you can achieve from the system. सिस्टम से आप maximum capacity क्या achieve कर सकते हैं in term of the data rate. Data rate के बारे में वो कहते हैं कि आपने एक सिस्टम है और एक बैंडविड्थ आपको दे दी गई है, उस बैंडविड्थ के अंदर आप मैक्सिमम कितने बिट्स पर सेकंड को अचीव कर सकते हैं. सो शैनन कहता है दिस इज नॉट एन अनलिमिटेड टर्म, ये आपके पास अनलिमिटेड नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन, ब्रॉडली इट इज डिपेंडेंट अपॉन, शैनन बता रहा है कि आपको कितने बिट्स पर सेकंड मिलते हैं. इट इज डिपेंडेंट अपॉन टू सिग्नल टू नॉइस रेशो. सिग्नल टू नॉइस रेशो के ऊपर डिपेंडेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. शैनन क्या कह रहा है? स्पीड को डिस्क्राइब कर रहा है, कैपेसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. एक लिंक के ऊपर मैक्सिमम आपको कितने बिट्स पर सेकंड रिसीव्ड हो सकते हैं. इज इट राइट? एंड शैनन आइडेंटिफाइड दैट रिसीविंग वी मीन टू बी कि आपको करेक्ट सिग्नल मिल जाए एट द रिसीवर. इज इट राइट? जो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू योर कैपेसिटी. तो शैनन ये कहता है कि किसी गिवन सिग्नल टू नॉइस रेशो ऑफ द लिंक में there must be some capacity of the link bits per second होंगे, and that is going to be identified by वो कितने होंगे, that is identified by the Shannon in 1948 के अंदर, which is known as the Shannon capacity. Now you see that transmitter, you transmit a bits per second from the transmitter, it will be passes through the channel से गुजरता है, and it is going to be received at the receiver के ऊपर received हो गया. Now how many bits correctly received per unit of time is said to be capacity of that system. इस system की capacity को P is the power of a signal received, N is the noise, and what is that noise is said to be AWGN noise. AWGN noise है. ये कौन सा noise होता है जी, कोई बताएगा थोड़ा सा? सर थर्मल नॉइस. This is a thermal due to the therm. So it means to be the Shannon capacity is applicable to all kind of the channels. अगर आपके पास ये वायरलेस चैनल है तब भी यही कैपेसिटी है. अगर आपके पास ये गाइडेड चैनल है, यानी कि आपके पास लैंडलाइन है, आपके पास यानी कोएक्सियल केबल है या फाइबर ऑप्टिक्स है या वट एवर इज अ केबल इज देयर, so that the same kind of the formula will be applied to find out the capacity of the that system. इस system की capacity को identify in term of its speed को identify कर सकेगा. Is it right? तो आपको power received हुई and divided by noise AWGN, and this is a log 2 से उसने इसको relate किया. It is related with a log 2. अगर मैं थोड़ा सा एक आपको identify कर दूं यहाँ पे, if you see this some of the equations there, for the time being you just ignore capital N, B and that H magnitude scale को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दे थोड़ी देर के लिए. आप फार्मूले को बस इतना ही समझें, log of 2 1 plus signal to noise ratio is over here. Signal to noise ratio कहते हैं जी सिग्नल टू नॉइस रेशियो जितनी अच्छी होगी तो इतनी अच्छी कम्युनिकेटर, यानी जितनी ज्यादा होगी the more number of bits will be received successfully at the receiver पे successfully received होगा. तो it will be illustrated as B divided by N. So log of 2 1 plus B divided by N is the signal power divided by the noise power. तो one of the thing is this कि अगर आपको कितनी बड़ी बैंडविड्थ, जो मैं लास्ट उसके अंदर आपको बता चुका हूँ, इफ यू हैव गॉटन अ ड्यूरेशन ऑफ योर बिट का ड्यूरेशन कम होगा तो बैंडविड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा जी? इफ यू हैव ना लेसर द ड्यूरेशन ऑफ द बिट का ड्यूरेशन जब कम होता है टाइम डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन का ड्यूरेशन, जब किसी बिट का ड्यूरेशन कम होता है, किसी सिग्नल का ड्यूरेशन कम होता है, तो इनटू द फ्रीक्वेंसी बैंड व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी सर. सर बैंड ज्यादा होगा. बैंड ज्यादा ऑक्युपाई करेगा. जैसे कि आप रेक्ट फंक्शन आपने कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा होगा जी, रेक्ट फंक्शन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है. एंड व्हेन एवर वी want to find out the Fourier transform into the frequency domain of that rect function in time domain, तो वो आपको क्या मिलता है? रेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या शेप मिलती है जी?
इसको आप अपने पास लिख लें. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू अगेन दी what is the time domain rect function that will be represented into the frequency domain. तो वो आपको sync function को identify करता है, sync function को. तो sync function की bandwidth बढ़ती है whenever the rect function duration is reduced. Is it right? उसकी एक पूरी मैथमेटिकल बैकग्राउंडिंग है. तो अगर आपने कम्युनिकेशन का कोर्स अच्छा पढ़ा है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू मीन बाय दिस. ठीक है जी. तो इट मीन्स टू बी नॉट ओनली जब आपका बिट का ड्यूरेशन कम हुआ तो इसका मतलब है यू कैन ट्रांसमिट मोर नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में आप ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स को भेज सकेंगे. मसलन एक बिट का ड्यूरेशन है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. ठीक है. 1 सेकेंड. हाउ मेनी बिट्स यू विल ट्रांसमिट इन 1 सेकेंड? देन बता दे. अगर एक बिट का ड्यूरेशन only one. only one bit you can transmit. अगर एक बिट का ड्यूरेशन 1 millisecond है, how many bits you will be transmitted in 1 second? 1K. Sir, 1000. 1000. It means to be कि duration of the bit are going to be reduces, the speed of the signal is going to be increased. तो जब आप ड्यूरेशन को कम करते हैं तो बैंडविड्थ पे क्या यानी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे क्या फर्क पड़ता है? तो आप ज्यादा बड़ा बैंड असाइन कर रहे होते हैं. इज इट राइट? फ्रीक्वेंसी बैंड खुलता रहता है. आपने टाइम ड्यूरेशन के बिट को रिड्यूस करते रहे, व्हाट विल हैपन दैट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम विल बी एक्सपैंड. वो एक्सपैंड होता है बिकॉज एफ इज इक्वल टू 1/t के बराबर है ना. जब टी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, जब टी कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बैंड आपका बढ़ता रहेगा. सो द फ्रीक्वेंसी, सो द कैपेसिटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो, but it is also going to be dependent upon the bandwidth you are going to be occupying over there. इस bandwidth पे भी dependent है. So अभी आप n को बिल्कुल भूल जाएं और h को भी भूल जाएं. We just have enough formula reduce over there is the b log of 2 1 plus signal to noise ratio. Signal to noise ratio के ऊपर dependent है. Now you see that this is the formula is over there. C is equal to b log of 2 1 plus signal to noise ratio. Signal to noise ratio. अगर ये आपके पास अच्छी है, अब लेट्स सपोज अगर आपको कहा जाए फॉर अ जीएसएम सिस्टम के लिए आप कैपेसिटी को मालूम करें इफ द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इक्वल टू 20 dB. आप मेरी बात समझ रहे हैं? द क्वेश्चन इज दिस, what will be the capacity, what will be the Shannon capacity of the system whenever for the GSM system, whenever the signal to noise ratio is equal to 20 dB. Signal to noise ratio आपके पास कितनी है? 20 dB है. And you are required to find out the capacity of it. Can you do this? सर पहले डीबी को सर हम लीनियर में चेंज करेंगे. आप लीनियर में चेंज करेंगे तो 20 और dB सर को जब बैंडविड्थ 200 किलो. 200 किलो. दैट्स वेरी गुड. तो आपके पास बैंडविड्थ आपको जीएसएम जब कहा गया है तो यू जस्ट हैव टू यूज एन 200 किलो का बैंडविड्थ इस्तेमाल करें. इज 200 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ हो गया. एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इक्वल टू 20 dB. सो यू मस्ट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर. आपको लीनियर के अंदर कन्वर्ट करना है. 20 dB को जब आप कन्वर्ट करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू बी कन्वर्ट? व्हाट विल द आंसर? 20 dB को लीनियर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? 10 power of dB divided by 10. 10 power of dB divided by 10. So 20 dB at 10 power of 20 divided by 10 is equal to 2. So 10 power of 2 is equal to 100. So you just have to put it 100 over here and 200 kilo is over here. So you will get the value of the capacity of that system. उस system की capacity आपको मालूम हो जाएगी. You see that 200 kilo multiply by log of 2 1 plus 100, whatever is the result, that will be the bits per second. आपको मिल जाएंगे यहाँ से. सर ये 20 dB से 100 कैसे आया सर? 20 dB आपका जब आप लीनियर में कन्वर्ट करते हैं ना, लीनियर में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था. 10 पावर ऑफ dB डिवाइड बाय 10. आप लिखें पेन पेज के ऊपर लिखें आप 10 पावर ऑफ dB डिवाइडेड बाय 10. हाँ, ये 10 की पावर में डिवीजन है. ठीक है, 10 की पावर में डिवीजन है.
10 पावर ठीक है ऑफ सर, dB डिवाइड बाई 10, तो आप dB की जगह आप 20 डाल दें, ठीक है सर, ठीक है। व्हाट वुड बी द आंसर? वो 2 हो इज इक्वल टू, जाएगी सर, हाँ 2 हो गई, तो और आपके 10 पास पावर 100 आ 2, गया। ठीक है That's सर। very good. That's very good. So what's happened? We have got 100 is over here. You just have to put an signal to noise ratio 100, and just you have to be calculated that expression. So number of the bits per second, that will be the capacity you can be calculated over here. ये आप calculate कर लेंगे. Is it right? Is it right? That's fine. तो जरा से इसको यहाँ भी देख लें, स्ट्रक्चर को। MSC is connected with the BSC, and that is now going to be connected with a very high speed link के साथ connected है, fiber optic cable के साथ, so there is no capacity issue is over here। जब आप यहाँ पे आते हैं, देखें ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है हमने अचीव किया हुआ है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड को अचीव किया हुआ है। Is it right? So there is no issue of the capacities over here between the MSC and the BSC, वो आपकी एक लैंडलाइन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन BSC से जब एनर्जी रेडिएट होती है, यानी सिग्नल रेडिएट होती है, एंड दैट इज अ डाउन लिंक, या इधर से इस एंटीना तक, ये जो लिंक है, दिस इज अ वायरलेस लिंक, एंड देयर इज अ बॉटल नेक ऑफ द कम्युनिकेशन। यहाँ पीछे तो कोई मसला नहीं है, एंटीना तक तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज वी हैव इन अ वेरी हाई स्पीड काइंड ऑफ द मीडियम इज ओवर हियर। लेकिन ये जब एयर के अंदर जाती है तो फिर कैपेसिटी में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी बढ़ जाता है, एंड यू हैव to use and some bandwidth over here. Now you see that if there is a radiated power over here is said to be 1 watt, 1 watt की radiated power है यहाँ से एंटीना से। So signal to noise ratio आप ये ट्रांसमिटिंग पावर को नहीं लेंगे, ट्रांसमिटिंग पावर तो 1 watt है, इट इज गोइंग टू बी रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन, सारी तो वो तो फैल गई, स्प्रेड हो गई, लेकिन कितनी पावर यहाँ पे मिली, that is an important, and this the power which is received at the receiver यानी मोबाइल स्टेशन पर, उसको हम SNR out कहते हैं, SNRO 0 के नाम से। So SNR out which is used, which is going to be received at the receiver, so that SNR out that will be equal to receive power divided by the noise के बराबर हो गया। receive power किसके बराबर होता है? Yes, it is dependent upon the directly proportional to the transmitting power divided by d power of n। इस एक्सप्रेशन हम कई जगहों पे एक्सप्रेस कर चुके हैं हम। what does it mean? So receive power can be calculated from here। now let's suppose एक और व्यू के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, if x is a transmitted, आपने x को ट्रांसमिट किया, is a bit, is any bit, is an information is transmitted, and y is received at the receiver, तो x के साथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द चैनल भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज द सम ऑफ द x विल बी एटेन्यूएटेड, यानी उसकी कोई पावर लॉस होगी व्हेनेवर इट इज पासेस थ्रू द मीडियम। जब मीडियम एयर इंटरफेस से गुजरेगा तो देयर इज सम लॉसेस ओवर हियर एज वेल, सो सम ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैनल विल बी इंक्लूडेड ओवर देयर। जब ये रिसीव्ड होगा तो सम ऑफ द नॉइस विल बी एडेड देयर, एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस विल बी एडेड एट द रिसीवर पे ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने x कुछ भेजा था, लेकिन चैनल की जो प्रॉपर्टी थी उसने 0.8 को मल्टीप्लाई किया x के साथ। 0.8 एक फैक्टर है, मतलब जितनी पावर आप रिसीव कर रहे हैं वो ट्रांसमिटिंग पावर से तो ज्यादा नहीं होगी, दैट विल बी अ लेसर ओवर हियर, वो यहाँ पे कम होगी। सो द y यू आर गोइंग टू बी, जो x आपको रिसीव्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ y, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय x। फॉर द टाइम भी मैं इस नॉइस को इग्नोर कर रहा हूँ, इस नॉइस को मैंने इग्नोर कर दिया। तो दिस इज द सिग्नल इज रिसीव, यानी x आपको पूरा नहीं मिला एट द रिसीवर, कुछ ना कुछ एटेन्यूएट हो गया, यानी 0.2 एटेन्यूएट हो गया, तो वी हैव गॉट एन 0.8 ऑफ x इज गोइंग टू बी रिसीव एट द रिसीवर, वो रिसीवर पे रिसीव हो गया। जब हम इसकी पावर मालूम करते हैं तो पावर तो स्क्वायर होता है बेसिकली, तो ये आपको रिसीव्ड हुआ तो इस 0.8x का स्क्वायर आ गया, इज सेड टू बी 0.64x स्क्वायर के बराबर हो गया। सो दिस इज सेड टू बी, ये प्रॉपर्टी ऑफ द चैनल है विच हैज बीन स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ द पावर। तो वो मैंने यहाँ पे सिग्नल, यानी सिग्नल की पावर जो है वो कुछ ना कुछ इस वैल्यू के साथ रिड्यूस हो जाएगी। So the channel will basically insert its property into the receive power. Receive power के अंदर कुछ अपनी property को insert कर रहा है. So is over here. Is it right?
सर ये स्क्वायर कहाँ से आया सर? ये स्क्वायर चूंकि पावर है ना, मतलब हम तो ये तो हम कहते हैं कि एक्स हमने भेजा, एक्स एक सिग्नल था, तो उस सिग्नल की पावर तो स्क्वायर होती है ना। मसलन आपने कभी वो कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर्स पढ़ा था ना, उसके यस अंदर सर। आपने एनर्जी को पढ़ा था। तो अगर एक्स ऑफ टी है तो एनर्जी कैसे मालूम करते हैं? आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक्स ऑफ टी स्क्वायर ऑफ टी डी टी से मालूम करते हैं। यस सर। आपको याद हो, आप थोड़ा सा चूंकि आपने कम्युनिकेशन का शायद कोर्स में इतनी तवज्जो न दी हो, तो उसके अंदर हम एनर्जी और पावर को समझना चाहिए आप लोगों के। व्हाट डज इट मीन? एनर्जी सिग्नल कौन से होते हैं और पावर सिग्नल कौन से होते हैं? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ द सिग्नल्स। तो जब आपको सिग्नल मिला तो वो उसकी पावर क्या होगी? स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के बराबर पावर होती है ना। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यस सर। से, हाँ, तो स्क्वायर ऑफ, तो हम हमारा जो हमने सेंड किया, क्या किया था? एक्स सेंड किया था, रिसीव क्या हुआ? एच, यानी एच ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द एयर इंटरफेस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द एक्स। अब ये एच जो है वो वन तो आइडियली होता है ना, आइडियल यानी आपको वन होगा तो आपको एक्स आपको जितना भेजा था उसी वो बगैर कोई एटेन्यूएट होकर आपको रिसीवर पे मिल गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि यार चैनल की जो है वो 0.8 मल्टीप्लाई हो रही है उसकी, तो 0.8 जब मल्टीप्लाई हुआ है एक्स के साथ, और जब मैं इसकी पावर मालूम करना चाहूँ तो इसको स्क्वायर, इसको इसकी इसकी इस एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर दूं, सो दैट विल बिकम इज इक्वल टू स्क्वायर। तो इज हैड टू बी 0.64 एक्स स्क्वायर, तो और भी कम हो गया, 0.8 से और भी कम होगी पावर, इज 0.64। सो जो रिसीव पावर है इज इक्वल टू ट्रांसमिटिंग पावर मल्टीप्लाई बाय द पावर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। And if let's suppose 1 watt is transmitted, the receive will be 1 multiplied by 0.64, 0.64 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे ली। So that will be equal to receive power is equal to some portion of the transmitting power. So signal to noise ratio, तो ऊपर की क्वांटिटी जब कम होगी तो नॉइस अगर वही है, so what's happened? Signal to noise ratio is now going to be reduced, which is not good. Which is not good for the communication. It's not a desirable term. ये आपके पास desirable नहीं है। We want to be having a good signal to noise ratio, यानी कि जितना, जब मैं ये लिखता हूँ कि signal to noise ratio is equal to 100, what does it mean to be? जी, जब मैं ये लिखता हूँ कि signal to noise ratio is equal to 100, what does it mean to be? जी, anybody? सर के हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब पावर, और कितनी नॉइस ज्यादा कम है? है, मतलब कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? हमारी जो सर ये सिग्नल की 100 टाइम सर। 100 टाइम्स जो है सिग्नल की पावर, नॉइस की पावर से ज्यादा उसकी। ये ठीक सर। है, तो 100 टाइम्स अगर ज्यादा होगी आपकी सिग्नल की पावर और नॉइस कम है, तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। मसलन अगर मैं कहता हूं कि अगर ये 300 टाइम्स ज्यादा है, 300 हो यहाँ पे, तो इट सेड टू बी कि सिग्नल पावर इज 300 टाइम्स लार्जर देन द नॉइस पावर। नॉइस पावर से 300 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। इज इट राइट? तो दिस इज सेड टू बी अ सिग्नल टू नॉइस रेशियो। It may happen सर ये that, एच की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? sorry, एच की वैल्यू कहाँ से मिलती है? ये तो आपकी चैनल की प्रॉपर्टी है, इसको हम मॉडल करते हैं। मॉडल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने किया कि ये एच की वैल्यू हमें कहाँ से मिली। ठीक है, इसको लिटरेचर के रिसर्चर ने इनको मॉडल किया हुआ है, इस एयर इंटरफेस को मॉडल किया हुआ है, मॉडल, जिसको हम बाहर बाद में जाके फेडिंग के इफेक्ट के अंदर पूरा स्टडी करेंगे। वो मॉडल है रिले मॉडल और रॉयसियन मॉडल से इसको नहीं है। इसके बाद कुछ रिसर्चर थे जापान, उन्होंने, उनका नाम था अकुमुरा एंड अकुमुरा और हाटा ने बड़ी रिगोरस कैंपेन की, और उन्होंने जापान टोक्यो के अंदर एक गाड़ी पे एंटीना इंस्टॉल किया, और पावर की वैल्यू को डिटरमिन करते रहे एक एंटीना से, और फाइंड आउट करते रहे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, गाड़ी में रख के जो मालूम करते थे कितनी पावर आ रही है। तो वो एयर इंटरफेस को स्टेटिस्टिकली मॉडल उन्होंने स्टेटिस्टिकली मॉडल किया।
तो इसको हम इन तीनों चीज़ों को हम जाके पढ़ेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी द फेडिंग इफेक्ट ऑफ द चैनल को। जब हम चैनल को समझने की कोशिश करेंगे विल कम टू नो दैट। तो एक फिनोमिना है जिसको हम रिले मॉडल कहते हैं। रिले मॉडल यानी चैनल को एस्टिमेट किया जाता है बाय यूजिंग द रिले मॉडल। चैनल को एक और तरीके से भी एस्टिमेट किया जाता है, दैट इज सेड टू बी राइसियन मॉडल। राइसियन मॉडल्स विल स्टडी दिस एज वेल। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि वो जो रिसर्चर जिन्होंने स्टेटिस्टिकल जैसे इंपेरिकल फार्मूलेशन से फाइंड आउट किया कि चैनल कैसा है, इज सेड टू बी ओकुमुरा या हेटा मॉडल। वो भी हम जाके स्टडी करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसकी वैल्यू जो है हम मॉडलिंग से अचीव करेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी द फेडिंग के चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे। इज इट राइट? तो एच आपको वहां से आता है। इट मे हैपन दैट कि एक इस तरह भी हो सकता है कि जो आपका रिसीवर है इस गेटिंग एन पावर फ्रॉम दी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से वो ले रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पावर वो मल्टीपाथ से भी आ रही हो, यानी यहाँ से भी टकरा के आ रही है, किसी और जगह से भी टकरा के इसको मिल रही हो। इज इट राइट? तो फिर आपने जो रिसीव्ड है वो जो आपकी इन्वायरमेंट का क्लटर है इज नाउ गोइंग टू बी मॉडल विद द एच डॉट एच ऑफ ट्रांसपोज के साथ करते हैं। मसलन अगर आपका एच और एच ट्रांसपोज यानी कि आपके एक ही सिग्नल दो पाथ से आए हुए हैं और दोनों जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो रहे हैं, सो इट विल गिव यू 1। वो आपको आउटपुट के ऊपर 1 दे देगा। मैं आपको अब एच और एच ट्रांसपोज का बता रहा हूँ जी। एच क्या है? एक सिग्नल आया आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से, उसकी जो हुई एटेन्युएशन हुई वो एच के साथ हुई। अब दूसरा सिग्नल उसका मल्टीपाथ आया और वो किसी और जगह से आया, लेकिन वो जब रिसीव्ड हुआ एट द रिसीवर और वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो रहा है उसके साथ, सो दैट वुड बी गुड। सो उसका अगर एक ही मल्टीपाथ है, सो कंस्ट्रक्टिवली एडेड टुगेदर, जब वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हुआ तो एच डॉट एच ट्रांसपोज जो है वो हम कहेंगे इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सो इफ दैट वुड हैपन दैट, तो फिर आपका ये क्वांटिटी जो है एच डॉट एच ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। इन नॉर्मल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जितने भी आपके मल्टीपाथ्स आ रहे हैं, मल्टीपाथ एक या दो तो नहीं होते, हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, and I'm going to be identify from 1 to n number of multipaths are रहे हैं। So I is equal to 1 to n. So if all the multiple paths are received at the receiver, तो उन सब के अंदर अगर आप पावर को जमा कर दें, so that would be equal to 1, वो 1 के बराबर हो गया। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई, so no matter, कोई मसला नहीं है, ये जरा हाई लेवल की बात है, आपके लेवल की नहीं है। अगर कोई अंडरस्टैंड करना चाहे तो दैट वुड बी बेटर। सो फॉर ऑल काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम देयर इज अ बेसिक assumption इज दिस कि जितने भी आपके मल्टीपाथ्स आके आपको ऐड हो रहे हैं उनके अंदर जो पावर एग्जिस्ट कर रही होती है दैट वुड बी इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ओके जी, सो आई होप कि आप लोग शैनन कैपेसिटी को समझ गए जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके, थोड़ा सा अगेन कम्स ऑन टू द जिन्होंने अभी ज्वाइन किया या देर से ज्वाइन किया या बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो वो दोबारा से इधर ज़रा अटेंटिव हो जाएं जी। सो वी आर गोइंग टू बी एक्सप्रेस अगेन ओवर हियर। थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में, अपनी राइटिंग के अंदर आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लोर इज ओवर हियर। देखें, कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास ये रिसोर्स हैं। वन इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी, द अदर इज सेड टू बी टाइम, द अदर इज सेड टू बी स्पेस। आप ऐसा करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं अमॉन्ग द यूज़र। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी बैंड मैंने एक यूज़र को दे दिया, इस दरमियानी फ्रीक्वेंसी को मैंने दूसरे यूज़र को दे दिया, ये तीसरे यूज़र, सो द फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन डिवाइडेड। लेकिन टाइम वही रहता है, टाइम के अंदर हम चेंज नहीं लाते। सो वी स्टेटेड दैट द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमने कर दी यहाँ पे। तो अगर यही फ्रीक्वेंसी फिर यूजर को दे दी जाए, so we stated that is FDMA, frequency division multiple axis
has been provided to the multiple users को define करती है। अगर let's suppose कि हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और टाइम को डिवाइड किया, तो वो टेक्नोलॉजी और हर एक टाइम स्लॉट जो है वो यूजर को दे दिया जाए, सो इट्स सेड टू बी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहलाता है। दिस इज सेड टू बी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो दूसरी रिसोर्स हो गया, वन रिसोर्स इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी, द अदर रिसोर्स इज सेड टू बी टाइम। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज सेड टू बी स्पेस, वो स्पेस है। मसलन ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है। अब जब फ्रीक्वेंसी या वेव जनरेट की जाती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डायरेक्शनल वेव, डायरेक्शनल, मैं थोड़ा सा एंटीना थ्योरी भी आप लोगों को थोड़ी सी मैंने डिस्क्राइब की थी कि वी मे हैव एन डायरेक्शनल एंटीना एंड वी मे हैव एन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है? इट रेडिएट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस के अंदर रेडिएट करती है। कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हो जाए एंटीनास तो वो क्या करते हैं, इट रेडिएट्स एनर्जी इनटू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हम उसको कहते हैं दीज आर दी डायरेक्शनल एंटीनास, हम उसको डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं। मसलन एक जब भी जो एनर्जी प्रोपगेट होती है फ्रॉम द एंटीना, तो अगर वो डायरेक्शनल है तो वो इस डायरेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल उसने एनर्जी को रेडिएट की, दिस इज सेड टू बी द मेन लोब, LOBE, मेन लोब ऑफ द एंटीना, मेन लोब ऑफ द एंटीना पैटर्न, एंटीना पैटर्न का मेन लोब है जिसका ये डायरेक्शन है। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ छोटे छोटे लोब्स भी बनते रहते हैं, यानी यही फ्रीक्वेंसी वो छोटे छोटे लूप्स के अंदर इज ऑल्सो एग्जिस्ट ओवर देयर, इज इट राइट? अच्छा, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द मेन लोब और ये यूजर 1 को एलोकेट कर दी जाती है, यानी यूजर 1 को ही इसी उसके अंदर कम्युनिकेट होना शुरू हो जाती है। अब ये जो इसका पॉइंट है, इस फ्रीक्वेंसी का जो पॉइंट है, दिस इज सेड टू बी नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे कोई लोब जनरेट नहीं हुआ इस जगह पे, इस जगह पे कोई और फ्रीक्वेंसी का, किसी और फ्रीक्वेंसी का लोब जनरेट किया जाता है, मेन लोब जनरेट किया, सो द नल ऑफ द फर्स्ट कैन बी द मेन ऑफ द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का लोब हो सकती है, एंड दैट डायरेक्शन इज गिवन टू द यूजर 2 को दी जा सकती है, दैट विल बी गिवन टू द यूजर 2 को दी जा सकती है। सो एवरी यूजर इज डिवाइडेड इन अ स्पेस, यानी कि ये वाला सिग्नल जो है वो ट्रैक कर रहा है इस यूजर को, और ये वाला जो लोब होगा, जो नल है इसका नल है, वो दूसरी फ्रीक्वेंसी का मेन लोब होगा जो यूजर 2 को, तो दैट विल नॉट बी मिक्स विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, दैट विल नॉट बी मिक्स विद वन अनदर। और अगर ये यूजर जब मूव करता है, whenever that user moves, what will happen that lobe is also going to be moved with this। इसको हम आखिर जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे इन वायरलेस कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर मैं स्मार्ट एंटीना के टॉपिक के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लोर करूंगा, मैथमेटिकल बताऊंगा कि हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रैकिंग द यूजर विद दैट स्मार्ट एंटीना। स्मार्ट एंटीना से हम इसको कैसे ट्रैक कर रहे हैं। So you see that the space has been divided. The physical space has been divided, which is said to be space division multiple access technique. So this is said to be physical space. ये physical space का एक resource है जो हम divide कर रहे हैं among the user. यानी जो एक space जो है वो एक user के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसका null दूसरी तरफ होगा, वो उस null पे कोई और frequency इस्तेमाल हो रही है, and that will be done by using the smart antennas। स्मार्ट एंटीना से हम इसको कर सकेंगे। जी, अब थोड़ा सा मुझे रिस्पांस दें, इज इट ओके? कुछ थोड़ी सी आप लोगों को इसकी नॉलेज हो गई है? जी जी, एनीबॉडी? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी डायमेंशन, स्पेस की डायमेंशंस की बात करते हैं। क्या आपको तो ये पता है कि एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस होते हैं, इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस है। दिस इज सेड टू बी अ 3 डायमेंशनल स्पेस, इज इट राइट? ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, एंड दिस इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, दिस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल।
every vector is with one another at an 90 degree, 90 degree के ऊपर है एक दूसरे के साथ 90, so these are said to be orthogonal. हम इस पे कई और वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई और वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड के साथ, जिस तरह के आम हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. So what's happened, all the vectors can be represented, so the space is basically identified with that dimensions x y and z के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास इसका मतलब है कि तीन डायमेंशंस है. एक और डायमेंशन है जो टाइम के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन स्पेस के अंदर वी हैव गॉट एंड ओनली अ 3 डायमेंशन. इससे ज्यादा हमने कोई डिस्कवरी नहीं की हुई. वी हैव गॉट द 3 एंड ऑल इज नाउ गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड. Any vector can be represented, any space can be represented, any point can be represented by using a 3-dimensional system के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So हो सकता है कि कोई और किसी और गैलेक्सी के ऊपर, कहीं और प्लैनेट के ऊपर और भी नंबर ऑफ स्पेसेस हों. अभी हमारी जो नॉलेज के अंदर बस यही 3 dimensions and we relate everything by using these 3 dimensions. और आपको पता है कि और कोई स्पेसेस हो आपके, और कोई डायमेंशन आप लोगों के जहन में हो? जी नहीं है सर. हम तो बस यही जानते हैं वी हैव गॉट द 3 डायमेंशंस. ओके, लेकिन 3 डायमेंशंस तो हैं, लेकिन दिस इज सेड टू बी अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज इट राइट? कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको पता है कि कौन से हो सकते हैं? शायद मैंने आपको लोगों को शुरू की क्लासों में शायद बताया भी हो कि हाउ मेनी डायमेंशनल सिस्टम्स वी हैव. कि कार्टेशियन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है. फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर, हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं. वन इज सेड टू बी स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये 3 सिस्टम्स हैं. वन इज सेड टू बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द सेकंड इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एंड द थर्ड वन इज सेड टू बी स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. ठीक है. तो उसकी मैथमेटिकल ग्राउंडिंग है वहाँ पे. जो हमारा ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 लीनियर डायमेंशन है और 1 एंगल है, और हमारे पास स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2 एंगल और 1 आपके पास लीनियर डायमेंशन है. तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एज वेल. उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये तो हमारी फिजिकल सिस्टम के अंदर बात हो गई. लेकिन जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो 3 वेक्टर्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? एनीबॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? सर 90 डिग्री का उसमें जो होता है 90 डिग्री का एंगल. These are perpendicular to one another. These are 90 at 90 degree with us. So हमारे पास 3 ही एक्सिस हैं, and these 3 are at a 90 degree with one another. Is it right? So we cannot have enough more than this. Is it right? तो इससे हम और वेक्टर्स को डिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन जब हम सिग्नल्स में आते हैं, सिग्नल्स की दुनिया में आते हैं, तो वहां पे भी जो सिग्नल ऑर्थोगोनल होते हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं, तो वो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं. इट मींस टू बी कि आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो क्या वो भी 3 होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं कि नहीं होते? अब आप मेरी बात समझ गए. फिजिकल स्पेस के अंदर तो हमारे पास 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर मौजूद हैं, लेकिन क्या सिग्नल्स की दुनिया के अंदर भी हमारे पास 3 ही ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मौजूद हैं कि नहीं? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. Yes, of course, we may have more orthogonal vectors into the, काफी orthogonal vectors हो सकते हैं into the signals के अंदर. आपने Fourier series पढ़ा होगा. Fourier series, all the components of the Fourier series, all the terms of the Fourier series are orthogonal vectors actually into the signal. वो सारे orthogonal हैं. If all are orthogonal, अगर सारे orthogonal होंगे, so these are distinguishable from one another. एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे. जिस तरह के x y z 90 डिग्री पे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते. इसी तरह अगर orthogonality principle we achieve into the signals, so we stated that these are that cannot be mixed with one another. एक दूसरे में थोड़ी कम्युनिकेशन की बेसिक स्टडीज के अंदर चला गया. ठीक है, जो आपने डीएसपी या किसी और जगह पे भी शायद पढ़ी हो. ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं जी? यस सर. जी. तो सिग्नल्स के अंदर
we have got a lot of orthogonal vectors are there. वहाँ पे signals के अंदर सिर्फ 3 आपके पास dimensions नहीं है. We have got a many more dimensions and these are equally orthogonal with one another. एक दूसरे के साथ orthogonal भी होते हैं. These are said to be orthogonal. यानी 1 हर्ट की frequency 2 हर्ट frequency के साथ orthogonal है. 2 हर्ट की frequency 4 हर्ट की frequency के साथ orthogonal है. 4 हर्ट की फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी है. इज इट राइट? तो बस आप ये इस चीज को समझ लें कि दीज आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एंड कैन बी दिस. ये मिक्स नहीं होती हैं. दैट कुड नॉट बी मिक्स विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगी. ठीक है जी. सो ऑर्थोगोनैलिटी हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट. तो स्पेस को तो हमने 3 डायमेंशन के साथ एक्सप्रेस किया और उसको हम लोब साथ यानी कि ट्रांसमिशन लोब जो आपकी माइक्रोवेव के लोब्स हैं इनिशिएटेड फ्रॉम द दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम द एंटीना, तो वो हम स्पेस के अंदर डिवाइड करें बाय यूजिंग द एक्स वाई जेड. लेकिन अगर सिग्नल को देखा जाए तो सिग्नल के तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, सो दैट उसको भी स्पेस की तरह ही क्रिएट यानी स्पेस में अगर एक्स वाई जेड नहीं मिक्स हो सकते यानी ये रिकग्नाइजेबल है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है. तो अगर सिग्नल के भी बहुत सारे वर्जन जो है वो 90 डिग्री पे हों तो वो भी स्पेस की तरह ही ट्रीट किए जा सकते हैं, डायमेंशंस की तरह ही ट्रीट किया जा सकते हैं और उनको हम कहते हैं CDMA. स्पेस के साथ उसको रिलेट करके कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस के साथ उसको रिलेट किया जा सकता है. सो इट्स सेड टू बी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस. दिस इज अ थर्ड वी विल स्टडी इन दैट सेक्शन. इनके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली यू मस्ट आस्क हियर, क्योंकि ये इसके बाद हम काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजीज को पढ़ने जा रहे हैं. सो यू मस्ट हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर ओवर हियर. सर ये ग्राफ में हमें लोब की क्या जरूरत है? मतलब हमारा जो सर ऊपर ये नल पॉइंट जो है ये सिंगल जो है, तो ये अगर हम सिर्फ ये हो तो इससे काम नहीं हो सकता कि हम लोब जरूरी है या फिर? नहीं, देखिए जब एंटीना से रेडिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वो इस किस्म के पैटर्न्स में रेडिएट होती है, इस किस्म के. ठीक है. एक लोब के अगर डायरेक्शनल एंटीना है, ये याद रखें डायरेक्शनल एंटीना, मैं सारी तरफ भी ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ. जो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना या आइसोट्रोपिक एंटीना की बात हमने लास्ट टाइम की थी, इट रेडिएट्स एनर्जी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो वो आइसोट्रोपिक एंटीना ओमनी डायरेक्शनल एंटीना. लेकिन ये डायरेक्शनल एंटीना है. दिस इज सेड टू बी डायरेक्शन. अब वो क्या करता है कि एक डायरेक्शन के अंदर एनर्जी को रेडिएट कर रहा है और दूसरी किसी जगह पे रेडिएट नहीं कर रहा. इसके छोटी छोटी एनर्जी लोब्स बनते हैं करीब करीब. ठीक है, ये वाले बनते रहते हैं, लेकिन उसका जो मेन एनर्जी का लोब है वो एक डायरेक्शन. तो ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के हुए हैं कि आपको ज्यादा कन्फाइंड यानी फोकस एनर्जी को इधर उधर जाया नहीं होने देते, बस एक डायरेक्शन के अंदर आपको भेज देते हैं और आप वहां से उसको रिसीव कर सकते हैं स्पेस के अंदर. अगर अब समझ गए. अब ये जो लोब है उसका मेन लोब जो है वो एक यूजर को दे दिया गया है. वो यूजर यहाँ खड़ा है, उसको बिल्कुल पॉइंट करके यहाँ पे उसका लोब दे दिया, वो फ्रीक्वेंसी इसको मिल गई. अब इस लोब का यानी इस एंटीना पैटर्न का जो नल पॉइंट है जहां पे कुछ भी नहीं जनरेट हो रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट हो रही, वो ये वाला इसका नल पॉइंट. इधर मैंने कोई और फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसी तरह का लोब जो है एक और जनरेट करके यहाँ पे बना दिया और वो मैंने दे दिया यूजर 2 को. अब ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि ये स्पेस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्पेस, ये अपनी स्पेस को पकड़ा हुआ है, ये अपने स्पेस को पकड़ा हुआ है. इसी तरह जो और नल्स होंगे उस पे कोई और यूजर होगा, कोई और यूजर किसी और नल के ऊपर. सो वी विल हैव एन ओवर हियर. इज इट राइट? तो बहुत सारे यूजर यानी स्पेस को हमने डिवाइड किया, यानी ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस. अगर ये यूजर मूव करता है तो उसके साथ साथ इसका जो लोब है वो भी इसके साथ यूज कर रहा है. उसको हम कहते हैं स्मार्ट एंटीना. एंटीना इज सेड टू बी स्मार्ट कि वो ट्रैक कर रहा होता है आपके यूजर को और यूजर के साथ साथ जो है वो मूव कर रहा होता है. सो दैट विल बी फोकसिंग द यूजर बाय यूजिंग ऑन सम पर्टिकुलर लोब ऑफ द फ्रीक्वेंसी के कोई खास लोब के बने. जी. तो ये जब मूव करेगा तो ये तो नल पॉइंट से इस साइड पे नहीं आ जाएगा फिर? हाँ आएगा ना. तो आपका जो एंटीना है वो आपके यूजर की तरफ ही
वो जो मेन लोब है उसको टिल्ट करता रहेगा, एंड दैट विल ट्रैक द यूजर, यूजर को ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आखिरी पोर्शन है आपके कोर्स का जो मैं आपको बताऊंगा आखिर में, इज इट राइट, कि वो कैसे करता है और उसकी क्या टेक्नोलॉजी है। विल डिस्कस दिस इनटू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर कोर्स, हम अपने कोर्स के आखिर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, दैट्स वेरी यस गुड। सर। तो ये चीज हो गई। तो आपने ये समझना, जो मैं इतनी बहस की है, इसकी बहस करने का वजह ये है कि जो स्पेस है, ये असल में मैं सिग्नल को स्पेस की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि सिग्नल भी आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, और ये जो स्पेस है इसके जो वेक्टर्स हैं वो भी आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल क्वालिटी इसके अंदर भी है और इसके अंदर है। तो स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सिस के ऊपर मैं जो हूँ CDMA कोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कोड्स को मैं एज एन स्पेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। इज इट राइट? सो ऑल इज दिस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख लें। दिस इज अ इंफॉर्मेशन क्यूब। अगर मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही डिवाइड किया हुआ है तो इंफॉर्मेशन मेरी सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्लाइसेस के अंदर पड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैंने टाइम को भी साथ यूज किया हुआ है तो मेरी इंफॉर्मेशन का जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। और अगर मैंने स्पेस भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी की हुई है, टाइम डिवीजन भी किया हुआ है और स्पेस भी किया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। सो ए लॉट ऑफ अ बिग volume of the information can be communicated if I am doing simultaneously frequency division, the time division and the space division। अगर तीनों मैं कर रहा हूँ तो मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी दिया। तो टेक्नोलॉजीज इज नाउ गोइंग टू बी enhancing the speed of the Shannon capacity will then be a different there। तो आपकी काफी बड़ी इंफॉर्मेशन यानी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है जी। So that is going to be represented. Say amount of information is going to be enhanced if you are going to use all the dimensions simultaneously। अच्छा, अब आप देखें जरा सा जो आपका कैपेसिटी का, शैनन कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। दिस इज सेड टू बी, नीचे आपको क्या मिल रहा है? सिग्मा स्क्वायर मिल रहा है। व्हाई आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ सिग्मा स्क्वायर? पहले क्या नीचे था? सर पहले तो सिंपल एन था, एन था, मतलब और एन नॉइस। क्या चीज थी? एन क्या चीज थी? नॉइस। नॉइस थी। और सिग्मा स्क्वायर क्या चीज है? दिस इज अगेन अ नॉइस। सर उस एन की जगह नॉइस ही है। और ये मैंने अब आपको सर शुरू ये के 2 डायमेंशन हो गए। नहीं शुरू के लेक्चर्स के अंदर मैंने AWGN को वो गॉसियन कर्व बनाया था, इफ यू रिमेम्बर दैट। और फिर मैंने बताया था कि देयर इज सम स्टैंडर्ड डेविएशन देयर, और इसके अंदर जो है वो नॉइस की पावर मौजूद होती है। तो नॉइस पावर इज बेसिकली आइडेंटिफाइड विद द सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ यू रिमेम्बर दिस, क्या आप लोगों को याद है? मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने बताया आप लोगों को। नॉइस को मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ था क्लास के अंदर, इफ यू रिमेम्बर। एनीबॉडी प्लीज गिव मी अ फीडबैक देयर। जी, किसी को याद है जी? सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर। आप अपने पुराने नोट्स उठाएं एंड देन यू विल कम टू नो दैट कि व्हाट डू मीन। अगर आपको नहीं याद या मैंने नहीं कराया तो मैं कल नेक्स्ट टाइम आपको पेज के ऊपर दोबारा इसको करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज इट विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल टू यू। जी हमजा, हमजा इज देयर? सर हमसे ने कमेंट किया था, उसका माइक खराब है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, आप बता दें मुझे, आप बता दें प्लीज। सर नोट्स में तो नहीं है। अच्छा डिस्कस चलें, किया था सिर्फ सर, आपने ये बताया किया था एडिटिव हाँ, वाइट गार्जियन नॉइस का। उसमें मैंने एक गॉसियन कर्व बनाया था, फिर उसके अंदर मैंने कुछ उसकी प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी बताई थी, एंड देन मैंने सिग्मा एन को रिप्रेजेंट किया था। तो बहरहाल सिग्मा स्क्वायर इज सेड टू बी द पावर ऑफ नॉइस, विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे याद दिलाना है कि मैं इसको पेन पेज के ऊपर करके और दोबारा इसको कर दूं। ओके जी। सो यू सी दैट कि एफडीएम के अंदर क्या है?
FDMA के अंदर कि आपका ये जो बैंडविड्थ है फ्रीक्वेंसी का, वो उसकी ही स्लाइसेस बनी है। द टाइम देखें, ये जो टाइम है ये सबके लिए एक ही जैसा है। आपको समझ आ रही है इस फिगर की? यू सी दैट कि यूजर 1 is there, user 2, user 3, user 4, user 5. So every user is allocated with a different frequencies. ये आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ना, तो आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेट की गई है। लेकिन इसी ब्लॉक्स के अंदर देखें, टाइम तो सबका एक जैसा है, टाइम तो सबका एक जैसा है। देखें, ग्रीन वाले का भी वही टाइम, ब्लू वाले का भी वही टाइम, इस कलर का भी वही, रेड का भी, और ये भी। सो ऑल हैव गॉट इन द सेम टाइम, ऑल द चैनल्स हैव गॉट इन द सेम स्पेस एज वेल। ये देखें, सबकी स्पेस भी एक जैसी है, ये स्पेस की डायमेंशन। ओनली व्हाट हैपन दैट द फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, ग्रीन, blue, then other we have red, and then other. You see that the frequencies are different, but the space and time. So we said to be this is a frequency division multiple axis. Multiple axis. So the information is only going to be conveyed by using the frequency spectrum rather than any other. इस फिगर को आप समझ पाए हैं जी? Anybody? ये सर फर्स्ट जनरेशन का है ना सर? हाँ, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो सिर्फ यूजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टाइम नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड और ना स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो सिंपली इज दिस। ये चीजें थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं एफडीएमए, बिकॉज इट इज यूज्ड इनटू द फर्स्ट जनरेशन मोबाइल्स के अंदर यूज हो रही थी। तो बहरहाल ये जो है ये रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज में डेफिनेटली अप्लाई जरूर हो रही हैं। ठीक है जी। सो दीज आर द बेसिक्स यूज्ड इनटू द फर्स्ट जनरेशन। वन चैनल कैरीज वन phone circuit. What does it mean to be? This kind is said to be, इस किस्म की जो आपकी एक्सेस है is said to be इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, I just forget it. This is a fully थोड़ा सा मुझसे मिस हो रही है वो टर्म। सो व्हाट्स हैपन कि आपको डेडिकेटेड रिसोर्स दे दिया गया है। द डेडिकेटेड रिसोर्स इज देयर, द फोन सर्किट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपको फोन सर्किट मसलन अगर आपको ये ग्रीन वाला बैंड दे दिया गया है, सो नोबडी कैन यूज दैट ग्रीन फॉर योर सेशन। आपके सेशन के लिए ये ग्रीन को नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। So this is a dedicatedly resource has been allocated to you. Blue वाले को, blue user को dedicated resource दे दी गया है। So one full circuit has been established and it will be remain there until and unless कि आप उसको छोड़ नहीं देते। So it's said to be dedicated resource has been assigned to you. ठीक है, तो ये आपके पास dedicated आपके पास आ गया। ठीक है, वन चैनल कैरीज वन फोन सर्किट, एक के अंदर आप हो गए। तो दिस इज डेडिकेटेड एलोकेटेड। इसमें मसला क्या है कि आइडियल स्पीड वेयर रिजल्ट इन्वेस्टेड। मसलन आप बात कर रहे हैं मोबाइल पे, और जो कि लोग होते हैं वो लंबी लंबी बातें करते हैं, सही रात बातें करते हैं। ऐसे लोगों के पास बातें ख़त्म हो जाती है तो फिर कहते हैं जी फिर, तो वो कहते हैं जी फिर। तो उसमें बड़े आइडल पॉजेज होते हैं, आइडल पॉजेज। तो वो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्स आपने पकड़ के रखा हुआ है, बड़े लंबी लंबी आप पॉजेज दे रहे होते हैं। सो आइडल स्पीच, जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते, पीरियड रिजल्ट इन वेस्टेड इन बैंडविड्थ, आप बैंडविड्थ को ज़ाया कर रहे होते हैं। ये चूंकि फर्स्ट जनरेशन की है तो नैरो बैंड के ऊपर काम करते थे। 30 किलो हर्ट्ज का सिग्नल एम्प्स के अंदर इस्तेमाल होता था, और जब नैरो बैंड के अंदर होता था तो इवन 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल इस्तेमाल होता था। The band is narrower over there. इसमें ये बड़ी सीधी किस्म की टेक्नोलॉजी थी, and there is no need of the synchronous transmission with low overhead. उसमें कोई लो ओवरहेड नहीं है, बस आपने फ्रीक्वेंसी एलोकेट की, बस उसके ऊपर आप आ गए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन बस शुरू की, and then it is now going to be communicated through the frequency के साथ कम्युनिकेट आपने। जी सर, अब एंड यूजर को जब एक चैनल असाइन होगा तो अप लिंक और डाउन लिंक उसी एक चैनल में से असाइन होगा कि मतलब
नहीं, रेड और हाँ बिल्कुल, ये तो आपका जो रेड है, फॉर एग्जांपल आपको एलोकेट हो गया, दैट विल बी एलोकेटेड फॉर द वन ऑफ द चैनल, इट मींस टू बी, या आप अपलिंक के लिए असाइन हो गया या आपको डाउनलिंक के लिए असाइन हो गया। एट द सेम टाइम एक और रेड चैनल भी आपको एलोकेट होगा, बट दैट विल बी इनटू द अदर फ्रीक्वेंसी बैंड, किसी और फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर होगा, इज इट राइट? सो दैट अपलिंक जिस तरह के जीएसएम के अंदर होता है कि 900 मेगाहर्ट्ज के करीब आपको अपलिंक दे दिया जाता है और डाउनलिंक आपको 1900 मेगाहर्ट्ज के दरमियान दे जाता है। सो व्हाट्स हैपन, यू आर मच एट स्पेसर ओवर देयर, कि आपकी ये जो वो आप कह रहे थे क्या, ओवर हेयर कर रहे थे, इकोज आप अपनी सुन रहे थे, उसको मिटिगेट करने के लिए काफी दूर आपको बैंड है। सो दैट वाज अ एफडीडी टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग आपके। तो ये एक चैनल आपको अपलिंक या डाउनलिंक के लिए दिया जाएगा। फिर इसी तरह अगर आपको ये अपलिंक के लिए दे दिया गया है तो इसी तरह का एक और चैनल आपको डाउनलिंक के लिए दिया जाएगा। इज इट राइट? सो द टू चैनल्स विल बी एलोकेटेड ओवर देयर। ठीक है, ओके सर। तो ओवरहेड्स बहुत कम है एफडीएमए टेक्नोलॉजी की। बस ये छोटी छोटी आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा था और 800, बस इसको आप सिर्फ रीड कर लें, देयर इज नथिंग टू डू विद दिस कि आप इसको रिकॉग्नाइज करें। बस 800 मेगाहर्ट्ज की रीजन के अंदर एम्प्स जो है वो इतने पेयर्स वॉइस चैनल के दे रहा था, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, वो आपको कह रहा था कि ट्रांसमिट फ्रॉम मोबाइल। देखें, आप मोबाइल से जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप ये फ्रीक्वेंसी, और जब रिसीव आप कर रहे हैं तो आप ये वाली फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिट फ्रॉम मोबाइल ये कर रहे हैं, और रिसीव, इट मींस टू बी डिफरेंट चैनल्स विल बी एलोकेटेड फॉर द अपलिंक एंड डाउनलिंक ओवर हियर। ठीक है जी, तो ये बस कुछ याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। और 416 चैनल्स होते थे फॉर 30 किलो हर्ट्ज के 416 चैनल जो हैं वो असाइन होते थे। ठीक है जी, तो दैट्स फाइन। इस स्लाइड से 18 से फिर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फर्दर। यस सर, अब काफी है सर। जी जी बोलें जी। सर वो प्रीवियस स्लाइड जरा अपलोड कर देना, वो सर आधे लेक्चर्स मिसिंग है, तो उसमें सर वो आपने जो नोट्स डाले हुए हैं वो कुछ उसमें नहीं है, मतलब मैं ये कम दोनों है। अपलोड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम होना है। यस ये सर। सर बस यही लास्ट क्लास थी। यही लास्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह आपकी वेडनेसडे को एग्जाम है ना? वेडनेसडे को पेपर है ये सर वेडनेसडे को है। यस वेडनेसडे को। सो एवरीबॉडी शुड बी विद मी ऑन वेडनेसडे पे। क्या टाइमिंग्स, कोई टाइमिंग्स लिखी हुई है उसमें? नो सर, टाइमिंग्स का बताया था कि सर खुद बता देंगे, मतलब कि एग्जैक्टली। जी ओके सर। ओके, तो बस ठीक हो गया। तो वेडनेसडे को इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट एट 10। ठीक है, 10 बजे हम ओके सर। स्टार्ट 10 करेंगे। नहीं सर, सर थोड़ा लेट करे सर। क्यों, आपने सोना है? 12। नो सर। हाँ सर ये होता है कि सर ये और पे वो टीचर्स 3 बजे तक 4 बजे तक पेपर देते हैं ना सर, तो वो होता है कि सर सुबह फिर अगर उठना है तो सुबह फिर थोड़ी सी रिवाइज करना होता है सर। चलें ठीक है, वी विल स्टार्ट एट 2 o'clock। ओके, लेकिन फिर आपने ये नहीं कहना कि आपने रात तक जो है ना वो जब तक मैंने आप लोगों को इंगेज रखा, यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्ड मी। हाँ सर, फिर 10 ठीक है, क्योंकि इसमें सर छुट्टी में भूल गया था सर। ये सर ट्यूसडे को छुट्टी है ना, मतलब हाँ सर, मैं भूल गया 3 था दिन वो सर, पहले। उसमें छुट्टी है। ट्यूसडे को छुट्टी है आप लोगों की? जी यस यस सर। सर 10 ठीक है, 10 ठीक है 10 सर। ठीक है, दैट्स फाइन। 10 ठीक है, 10 ठीक है, ताकि आप फिर नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हो सकें। ठीक है जी, तो आप 10 इज ओके। तो एवरीबॉडी शुड बी, मैं इधर से पोस्ट भी कर देता हूँ आप लोगों को। तो 10 o'clock जो है ना आप लोगों ने रहना है, और सर ताकि ये हम पेपर पैटर्न सर जरा बता दें सर। मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि आई विल गिव यू some open book questions